So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are going for Navy Artificer Apprentice interview. I hope students हमारे ये पर्टिकुलर कुछ व्यूअर्स ने हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया कि सर आर्टिफिशियल अप्रेंटाइज रिलेटेड एक इंट्रो बना दीजिए। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि नेवी रिलेटेड हमने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर इंट्रो दे रखी है और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज के देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा गजल। थैंक यू सर। गजल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटाइज का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ आर्टिफिशियल अप्रेंटाइज इन नेवी? यस सर, दे मेंटेन, ऑपरेट एंड repair weapons. They maintain equipments used in anti-aircraft warfare. They developed new equipments. They also do painting, cleaning, scrubbing. They work in steam-powered machinery, advanced radio, engines, gas turbines, missiles, and many more. And they specialized in anti-aircraft warfare. They can operate radar, sensor, and help in military missions. Wonderful. What is the motto of Artifire? Yes sir, the motto is everyone is artisan of their own fortune. Okay. Gajal, what are the skills required to be a artificer apprentice? Sir, intelligence is the biggest skill they require. Okay. They must be specialized in anti-aircraft warfare. Right. They must be physically fit, good knowledge of mathematics, GK and science. They must have good communication skills. Okay. And good knowledge of engineering, electrical and logistics. Good knowledge of technical and non-technical field. That's great. Gajal, what are the important ability scores for artificer? Like about strength, how much it should be? Yes sir, 11. And dexterity? Sir, 10. Okay. And constitution? Yes sir, 16. And intelligence? Sir, 16. Okay. And wisdom? Sir, 12. And charisma? Sir, 10. That's great. Who is the father of Navy? Yes sir, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay. And what is the old name of Navy? Sir, Bombay Marine. Okay. Okay. What is the first rank officer in Navy? Sure sir, Fleet Admiral. Okay. The golden symbol of Indian Navy signifies? Sir, pride, power, courage, confidence. And how many commands are there in Indian Navy? Sir, there are 3 commands. Western in Mumbai, Okay. Eastern in Visakhapatnam and Southern in Kochi. Okay. What is the motto of Indian Navy? Yes sir, Sham no Varuna. Okay. Ghazal, what is your favorite subject? Sir, my favorite subject is mathematics. Okay. Then can you tell me some questions regarding maths also? Yes sir. Okay. What is the rank of null matrix? Sir, 0. Okay. And what is the formula of cos 2x? Yes sir, बताना चाहूँगी cos 2x is equal cos square x minus sin square x. Okay. How to convert degree into percentage if angle is 60? जी sir, first we divide 60 by 360 and multiply by 100 and it will come 16.66 percentage. Good. Your mathematics is really good. Thank you sir. Okay. What is the area of isosceles triangle? Yes sir, 1 upon में 2 bracket में under root a square minus b square upon में 4. अरे वाह. गजल, व्हाट इज जी कोड? ये सुना आपने? Yes sir. सर मैं बताना चाहूँगी इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज इन CNC एंड 3D प्रिंटिंग. ओके. G code stands for geometric code. Okay. Okay. Now you tell me, what is the Navy Chief of India called? Yes sir, the Admiral. Okay. Okay. What proficiency does artificer have according to you? Yes sir, light armors, Okay. medium armors, shields, simple weapons, firearms and thieves tools and tinker tools. Wonderful. What is the meaning of apprentice in Navy? Yes sir, a trainee seller. Oh, that's great. What are your strengths, your strong points? Yes sir, I'm a positive, dedicated and disciplined girl. Gazal, what is your weakness? Sir, I want to work in a perfect manner. Oh, so perfection पसंद करते हैं आप? Yes sir. गजल, why do you want to make your career in Navy? आप नेवी में ही अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? जी सर, बताना चाहूँगी मैं बचपन से बोल्ड हूँ, क्रेजियस हूँ और स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है. और बचपन से ही मुझे पानी से बहुत प्यार है एंड देश की सेवा करना मेरा सौभाग्य है. सो मैंने ये सोचा नेवी मेरे लिए बेस्ट जॉब है क्योंकि मुझे पानी से ही इतना प्यार है. ओके. अच्छा, नेवी में आपने बताया आपको स्विमिंग पसंद है, तो स्विमिंग में कुछ विनर्स वगैरह रही हो आप कभी कहीं? यस सर, आई एम ए स्टेट प्लेयर. ओह, इन स्विमिंग. दैट्स गुड. अच्छा,
देखिए इस जॉब के लिए यू नो वेरी वेल यू आर नॉट सपोज टू गेट दिस जॉब एट योर होम, सो कैन यू गो एनीवेयर फॉर दिस जॉब? यस सर, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी इवन अब्रॉड भी जा सकती हूँ। ओके, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई होम सिकनेस नहीं है? नो सर। यू लाइक टू वर्क अलोन और इन अ टीम? सर अगर अकेले काम करना पड़ेगा तो वो भी मुझे पसंद है, एंड टीम के साथ करना पड़ेगा तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी टीम के साथ करना। So your preference is always towards a team? Yes, sir. And you don't need much constant reassurance? यस सर। Okay. अच्छा ये बताइए कि what type of people you like to work with? आई एम अ versatile person and I can adjust anywhere. Since you are asking, I want to tell you, I like to deal with positive people. I can't deal with negative people. Okay, you like positive people. Yes sir. Okay, what does your name mean? How it matches your personality? Yes sir, my name matches my personality as I am jovial and philanthropist girl. You are a jovial girl. Yes sir. पर संचित लड़की हो आप? Yes sir. Okay. और philanthropist means what? Lover of mankind. Okay, that's great. अच्छा देखिए यू नो वेरी वेल इन नेवी देर आर सपोज टू बी टाइमिंग, कई बार ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर बहुत होता है। Yes sir. तो मान लीजिए आपके सीनियर्स वगैरह आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर देते हैं, देन हाउ विल यू मैनेज? सर ये मेरी लर्निंग स्टेज है एंड मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं सीखना चाहूँगी। एंड अगर वर्क प्रेशर है तो मुझे वर्क प्रेशर पसंद है, एंड आई एम अ डेडिकेटेड गर्ल, तो मुझे वर्किंग हार्ड करना बहुत पसंद है। दैट्स गुड। अच्छा आप जानते हैं इस जॉब के लिए आपको डिफरेंट पर्टिकुलर इंटरव्यूज़ के थ्रू आपको कॉम्पीट करना है, तो हमारे पास यहाँ बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो इसी इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? वाई शुड वी सिलेक्ट ओनली यू? Yes sir, although at present I can't judge others who are standing in a queue like me, yet I can assure you about myself that I am punctual, dedicated, honest and positive attitude girl. ओके दैट्स ग्रेट। और आपने बताया कि यू लाइक टू मीट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल, Yes sir. तो ये जो पॉजिटिवनेस है ये आप अपने अंदर कैसे मेंटेन रखते हो? सर मैंने हमेशा से पॉजिटिव थॉट्स ही अपने माइंड में लाए हैं, एंड हम कोई काम करते हैं अगर देश के लिए हमें काम करें तो हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। एंड पॉजिटिव करते हैं तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव रहता है एंड काम भी पॉजिटिव होता है। अरे वाह, यानी कि आप नेवी के बारे में भी अच्छा नॉलेज लेकर आए हैं और आप खुद भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड गर्ल है। यस सर। दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है वो सबके लिए होना चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स सबके लिए, सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं होना चाहिए नेवी, क्योंकि इतनी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है हमारे सामने। गुड। यस सर। Ghazal, suppose you are not selected in this interview, then what you will do? Sir, I still working hard for this interview and I am confident that I will get selected. Unfortunately, if I am not get selected, I will come to know about my mistakes and my weakness. I will work upon it and get selected in my next interview. I believe in try again. अरे वाह, you believe in trial and error method. Yes sir. यानी कि आप वाकई में एक ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जानकर। Thank you, और अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने के लिए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में आपको टिप देते हो, टिप आपके बहुत काम आता है। देखिए आज का जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ दोस्तों वो तो बहुत यूनिक है, क्योंकि देखिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऑब्वियस है वहाँ पर कुछ कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के पास आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं मगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, वो क्या कह रहे हैं या फिर आपको सुनाई नहीं दे रहे, तो आप बोलना दोस्तों सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज। अकेला पार्डन प्लीज भी आप बोल सकते हैं, मगर ऐसा मत बोलना सर व्हाट, क्या सर, मुझे सुनाई नहीं दिया, एटलीस्ट ऐसे मत बोलना। आप बोलेंगे सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बोलेंगे दोस्तों सर सॉरी आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको थोड़ा आता है तो आप कह सकते हैं सर राइट नाउ आई एम एबल टू टेल ओनली द पेरिफेरल पार्ट ऑफ दिस आंसर, सो मे आई प्लीज एबल टू ट्राई माई बेस्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो आप जब सॉरी फील करते हैं तो ऑब्वियस है वो आपको बोलेंगे डोंट वरी इसका आंसर ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया, आपको नहीं आया और उन्होंने जवाब दे दिया, अब उन्होंने अगर जवाब दिया है यानी कि इंटरव्यूअर ने जवाब दिया तो आपका फर्ज बनता है उनको थैंक्स देने का। तो आपका फर्ज बनता है कि आप क्या बोले उन्हें कि उन्हें अच्छा लगे, तो आप बोलना थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज, मेरे नॉलेज को अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, देन दे फील गुड। और जिस तरीके से ऑप्टिमिज्म मुझे लगता है यहाँ पर गज़ल दिखा रही है इस जॉब के लिए, तो मुझे लगता है हमारा जो बॉयज़ कैंडिडेट्स है जिनके लिए असली में ये प्रोफाइल बना है, तो मुझे लगता है नेवल जॉब्स के अंदर हमारे बहुत से स्टूडेंट्स कैपेबल हैं। और नेवी रिलेटेड हमने आपको ऑलरेडी इंटरव्यूज दिए दोस्तों, और कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे स्ट्रेंथ्स वीकनेस के क्वेश्चन पूछता है, तो स्ट्रेंथ्स में कभी जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, डिटरमिन्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग। कभी कभी वो उसे प्रूव करने के लिए बोल देते हैं, तो आपके पास पास का एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अपनी वीकनेस में कभी भी मेजर वीकनेस नहीं बताएंगे, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे सर मैं शॉर्ट टेम्पर पर्सन हूँ या मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे।
माइनर वीकनेस रहेंगे, छोटी वीकनेस अगर आप बताते हैं स्टूडेंट्स तो ज़्यादा बेटर रहता है, इंटरव्यूअर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मेजर वीकनेस कभी भी नहीं बतानी चाहिए और अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ तक सीमित रहना चाहिए, अपनी वीकनेस बतानी ही नहीं चाहिए। वो बतानी तभी है जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे अलग से व्हाट इज योर वीकनेस, तभी आपने जवाब देना है। और यहाँ पर मुझे लगता है हमें थैंक्स देना चाहिए गजल को, गजल ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। गजल, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, गुड, थैंक यू सर। ओके।